will be like a web uniting the entire globe. What will be the role of the teacher? Will the teacher be an expendable commodity? No. I think the teacher can never be replaced and should never be replaced. Because it is the teachers, the physical presence of the teacher is what gives inspiration to children. Our intent is not to replace the teacher. But our intent is that if there is no teacher, there should be something for the child. That's what our intent is. Where we can bring teachers. In fact, teachers, you should use information technology because teachers are no longer the sole repository of knowledge. Because knowledge can be accessed through various mediums. Teacher is one such medium. जब हम छोटे थे तो हम समझते थे जो टीचर कहता है वही सत्य है क्योंकि टीचर भगवान होता था. लेकिन आज के दिन ये बच्चे नहीं मानते और टीचर को भी आईसीटी का क्या प्रयोग करके उसको भी अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा. लेकिन जहां टीचर नहीं है वहां आईसीटी का प्रयोग होना चाहिए. And this is not a myth, sir. This is going to be reality. Okay, thank you. Please sit down. Please sit down. Sir, my question is about rural post offices. There are still larger areas those who depend on money order economy, and most of your rural post offices are in bad shape, and your postal tariff is very high. So the migrant laborers, those who are staying away. Right, could you set the sound right, please? I can't hear the. Sound system खराब है सर. ये बात सही है. Mic लगा दो. Question is about the rural post offices. There are larger part in the country which depends on money order economy. Those who for dispatching money, those who believe on depend on post offices, but your tariff is very high. And your services is very poor in rural areas. That's a concern area. You're right. I think that much needs to be done and improvement should take place. But when the electronic delivery will happen, all these things will come down. Not only that, we are thinking of actually putting ATMs in villages. Yes. And your mobile phone will be an instrument. You'll be like your credit card. You can actually use your mobile phone as a credit card. CDAC is developing such technology as I talk. In fact, I had a meeting a few weeks ago where CDAC is developing this technology to make your mobile phone like a credit card. So if you have an ATM machine, you don't even have to go to the post office. Right? Through your credit card, you can access the ATM machine and you can withdraw money or you can deposit money as the case may be. All this will change. But you are absolutely right that today the systems are not as efficient as they should be. Thank you, sir. स्पीड पोस्ट एक जगह से बी जगह पहुंचाने के लिए मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की दूरी है. स्पीड पोस्ट का हब 200 किलोमीटर दूर है. तो ए जगह से जब लेटर चलता है वो 200 किलोमीटर जाता है, फिर वापस उस 10 किलोमीटर पर आता है. मतलब 10 किलोमीटर जिस लेटर को जाना है स्पीड पोस्ट का हब इस तरह से बने हुए हैं कि उसको लंबा सफर करना पड़ता है, देर से मिलता है. गांवों में क्योंकि सारा कोरियर तो होता नहीं, पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए सारे, वहाँ स्टूडेंट्स को उनका फॉर्म लेट मिलता है जब वो भेजते हैं, एग्जाम में शामिल होते हैं या टेस्ट वगैरह में. तो इस सिस्टम को भी पोस्ट ऑफिस का चेंज करेंगे. नहीं, स्पीड पोस्ट अब उसकी हम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं. अब तो ट्रैक एंड ट्रेस हो रहा है स्पीड पोस्ट का, और हमारा एक नॉर्म्स है कि इतने दिन में यहाँ पहुंचना चाहिए, इतने दिन में यहाँ पहुंचना चाहिए. नॉर्म्स भी है ना. ट्रैकिंग में ये प्रॉब्लम है सर कि आपका जो वेबसाइट पर ट्रैकिंग करते हैं जब, तो उसमें लिखा होता है यहाँ से यहाँ इस वक्त किया, यहाँ से यहाँ इस वक्त किया, और आगे जाकर के वो किया. अब उसके बाद 5 दिन के बाद दिखाया जा रहा है कि अब यहाँ से यहाँ पहुंचा. अब उसमें कई डिस्टिनेशन में. तो ये ट्रैकिंग जो है ऐसा होता है कि फीडिंग शायद सही नहीं हो रही. नहीं, ऐसा होता है कि जब जहाँ किसी जगह पहुंच जाए उसके बाद आगे जाने के लिए कुछ साधन चाहिए होते हैं. कई बार साधन नहीं मिलते हमें, तो इसलिए उसमें देरी भी हो जाती है. ये बात जो है, ये कानपुर और लखनऊ और दिल्ली के बीच में तो साधन की कोई कमी नहीं है. नहीं, कमी तो नहीं है. अब जब इस पीरियड में होता है, इन डेस्टिनेशन पे ये बात होती है, इसके मतलब कुछ लैकुना कहीं पर है. जरूर, अगर कोई ऐसी बात ऐसा हुआ हो तो आप हमें बताइए. मैं नहीं समझता को होना चाहिए. अगर एक
एक दो ऐसे एक ट्रांजैक्शन पासपोर्ट लखनऊ से चलता है, कानपुर आता है, कानपुर में उसको शो कर रहा है कि कानपुर में आ चुका है, बट 4 दिन के बाद ट्रेस हो पा रहा है कि 4 दिन के बाद अब उस बच्चे को जाना है आउट ऑफ कंट्री, जिसका पासपोर्ट बन के आया है और तत्काल उसमें बन के आया है, वो नहीं जा सका। हो सकता है कि एक आधे केस में ऐसे इसके हुआ मतलब ये हुए कि जहां पर मैनुअल कुछ बैग खोले जा रहे हैं, कुछ किए जा रहे हैं, उसमें कुछ गलती कहीं पर हो रही है। जरूर मैं मानता हूं, हो सकता है कि एक आध केस में ऐसा हुआ हो, लेकिन ये भी नहीं मैं मानता कि हर एक पासपोर्ट 5 दिन के बाद मिले। एक आध केस में हुआ होगा और हम उसको, अगर हमें पता चले तो हम उसको जरूर उसकी जांच करवाएंगे। और ये आप बात सही है कि जरूर सर बात जांच की नहीं है, बात मैं ये आपके जहन में डालना चाहता हूं कि इस तरह के मामला आए हैं ना तो ज्यादा बेहतर है, वो जो झेल गया जो कुछ होना तो हो चुका, अब जांच से कोई फायदा नहीं होगा, किसी को पनिश हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। बट जो एक जो प्रॉब्लम है जी, मैं माना ना, मैंने कहा हो सकता है कि ऐसे केस में हुआ हो, मैं ये नहीं कहता, पर मैं नहीं समझता कि हर एक केस में ऐसा होता होगा। अगर ऐसा होता होगा हर एक केस में तो हमें मालूम होता। जो आपने टावर वाली बात बताई है अभी के जो टावर लगाए जा रहे हैं, क्या इस टावर के को इस्टेब्लिश करने में क्या कुछ कंपनियां भी आ गई, या हर वो कम्युनिकेशन कंपनी कर रही है, या प्राइवेटली भी हो रहा है? अब बिजनेस ये है कि अब टावर कंपनीज टावर बना सकती है जी जी जी, और वो ऑपरेटर्स को दे सकती है। अच्छा, शेयरिंग ऑफ टावर्स पॉलिसी के अंतर्गत अलाउड है, शेयरिंग ऑफ स्पेक्ट्रम भी अल्टीमेटली अलाउड है। नहीं, जगह की अभी कोई डिसाइड नहीं, अभी तो कैबिनेट के पास नहीं गया। अभी हमने प्रपोजल क्लियर कर दिया मंत्रालय में, और ये भी कैबिनेट नोट अभी जाएगा। अभी 1-2 हफ्ते में कैबिनेट में जब जाएगा तो वहां अनुमति जब मिलेगी और जब फिर फैसला होगा कि कहाँ ये बनेगी। आपने तो हिंदुस्तान, हम लोगों को उस हिंदुस्तान में पहुंचा दिया जिसका ख्वाब बहुत पहले राजीव गांधी ने देखा था। मैंने उनकी एक स्पीच सुनी है, उसमें उन्होंने इस तरह की बातें उस वक्त कही थी, मुझे याद पड़ता। हम तो यही चाहते हैं कि राजीव जी का सपना साकार हो। यस प्लीज। सर, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ आपसे। जैसे कि मोबाइल कंपनियां या ब्रॉडबैंड कंपनियां जो प्रॉमिस करते हैं बैंडविड्थ वो नहीं दे पाते हैं, और सिक्किम में जैसे कि खासतौर से बात की जाए, भूकंप के बाद उत्तरी सिक्किम में टेलीफोन अभी भी बंद पड़ी है, BSNL अभी भी उसको रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लोग वंचित हैं ऐसे सर्विसेज। ठीक है, कहते हैं आप, बिल्कुल सही है, ये मुझे मालूम है इस बात का कि नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पे बहुत कमी है। तो हम नॉर्थ ईस्ट में एक स्पेशल हम नेटवर्क लगाने जा रहे हैं, BSNL उसमें काफी इन्वेस्ट करने जा रहा है, नया नेटवर्क लगाने जा रहे हैं।